नमस्ते, नमस्कार, आप सबको मेरा हार्दिक स्वागत. A most cordial welcome to all members of the audience and especially to our performing artists who are gifting us today something very special, एक Gandhi Prasad, Uphaar. It's something unique and very special. So in my introductory words, let me just briefly explain how Sangeet, music, makes Gandhi come alive. That's the title of the program that we have initiated here, and that is going to last for about 2 weeks. Now, we all know Mahatma as the prophet par excellence of non-violence and peace, or truth, ahimsa or satya. Yet very few people know that music, Sangeet, was very close to his heart. Uske dil ke kareeb the. And this is what we intend to show today. We want to give a new perspective on Gandhiji, and we want to show the Mahatma as a Sangeet Premi. Gandhiji once said, and I quote him, "If there was no music and no laughter in me, koi hansi, koi Sangeet mere andar nahi the, I would have died of this crushing burden of my work. मैं मेरी ये आपने समझ लिया ये मैं मर gaya hota." Yet, for Gandhi, music wasn't just produced by instruments, vadyantron se nahi, sitar or tabla se nahi, and by the human throat, ye swar, vocal. For him, there existed a music of the mind, man ka Sangeet, of the senses, indriyon ka Sangeet, and a music of the heart, hirday ka Sangeet, maujood tha. To the music teacher in the Satyagraha ashram at Sabarmati in Ahmedabad, Pandit Narayan Moreshwar Kare, he confided, swikar kiya, in a letter dated the 7th of October 1924. Again, I quote, "I have come to look upon music as a means of spiritual development, adhyatmik vikas. I cannot describe the joy I feel when listening to bhajans." मेरे पास शब्द नहीं है इसको describe करने के लिए. And it was this deep connection between music and spirituality, adhyatmik, exemplified by Gandhi, which attracted Miraben, his closest British disciple, and in a way she was my adopted grandmother, Miraben. Her English name was Madeline Slade. And she was a passionate student of the famous German composer Beethoven, Ludwig van Beethoven, and she found in Gandhi, her guru, the spiritual sustenance and inspiration she was seeking. To Gandhi's understanding, music was simultaneously a constructive activity, rachnatmak karya, which uplifts the soul, which gives our soul, our atma, meaning. In 1926, on the 15th of April, to be precise, to an audience at Ahmedabad, he spelled this out more clearly. Again, a short quote. "If we mean by music union, concord, mutual help, it may be said that in no department of life can we dispense with music. Sangeet se hum kaam nahi kar sakte." So if many more people send their children to music classes,
It will be part of their contribution to national uplift. This he said in the mid-20s. But this would equally well apply to our contemporary scenario, which is much in need of harmony and enrichment, and something that could be achieved through musical instruction in schools or through participating in musical events for which today is such a special opportunity. According to the Mahatma, again a quote, "In true music, there is no place for communal differences or hostility. Indeed, musical venues held during the independence movement in the 20s, 30s, and 40s were ideal examples of national integration, with Hindu and Muslim musicians in synergetic union, producing divine music." And I think we should remember this today on the Prophet's birth anniversary. And as you all know, music has the power not only to bridge religious differences, but also to traverse national boundaries. Rashtriya सीमाओं को पार करें, laying the foundations for global peace so much needed in today's world. Gandhi, in Search of Truth, also underscored this with regard to music. With lucid clarity, he said, I quote, "True music is created only when life is attuned, when it's in tune, to a single tune, एक सर के साथ संदर्भ में है, and a single time beat. Music is born, ये पैदा होता है, only where the strings of the heart are not out of tune. धुन से बाहर नहीं है." Transposing music into the political arena, he underscored that the experiment with music would be successful only when crores of people in the entire country would start speaking with the same voice. Ek आवाज से बोले. Music, he emphasized, must get a place in our efforts at popular awakening. तो राजनीति में भी इसको ले आना है. Most insightfully, he defined music, again a quote, "a music as a sacred and powerful ancient art which has the capacity to change and control emotions, भावनाओं को बदलने और नियंत्रित करने की क्षमता है संगीत में." At Sabarmati Ashram, he hosted prominent classical Indian musicians such as Pandit N.M. Kare, Mama Phadke, and Balkoba Bhave, who was the younger brother of Vinobaji. The life Gandhi lived was defined by rhythm and harmony, accentuated by melodious bhajans in the ashram's morning and evening prayers. For him, true music was integral to the threads of khadi, like the strings of the sitar, and the music of spinning with the charka. In one of his conversations with the Congress youth, Gandhi said, again a short quote, it's my last quote, "Our whole life should be sweet and musical like a song. To make life musical means to make it one with God, to merge music with God. He who has not rid himself of rag and dvesh, that is likes and dislikes, who has not tasted the joy of service, seva, cannot have any understanding of celestial music, svarg ka geet, sangeet. A study of music which does not take into account this deeper aspect of this divine art has little or no value for me." And this is from Navjivan on the 1st of July 1928. So Gandhi's deep appreciation of music provides us with an indispensable foundational stone for building the edifice
manzil of human friendship and reconciliation in India and globally. Above all, Gandhiji emphasized the enriching power of music and wanted musical training to be integrated into our youth's educational curriculum and become a central and integral part of our lifestyle, हमारी जीवन शैली. As Dr. Shruti Santanam will illustrate in her talk today, we are most privileged to welcome at the Gandhi Tirth today Dr. Shruti, an erudite scholar not only of Carnatic music, but also of Gandhi and especially of Indian traditions. Please join me in giving her a welcoming round of applause. मैं एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी मैं आज यहाँ आपके सामने रखूँगी बातें, वो सब मेरे गुरुओं से मिला है. तो ये गुरु वंदना के साथ मैं हमेशा शुरू करती हूँ. तो अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. एक सवाल से शुरू करूं. कितने लोग गाते हैं यहाँ पे? हाथ दिखाइएगा. अरे वाह. और कितने लोग नहीं गाते हैं? वो हाथ भी नहीं दिखा रहे हैं. बहुत साल पहले, मैं तो शास्त्रीय संगीत में मेरा अध्ययन रहा है. जब से पैदा हुई तब से शास्त्रीय संगीत, दाक्षिणात्य शास्त्रीय संगीत, शायद आपने सुना होगा. कर्नाटिक संगीत बोलते हैं उसको, कर्नाटिक म्यूजिक. तो उसी माहौल में बड़ी हुई हूँ. तो और कुछ सुनने में भी नहीं था. तो ऐसे ही मैं बोलते बोलते गाने भी लग गई. कुछ पता भी नहीं चला कि हम गा रहे हैं. तो कुछ बोलेंगे, कुछ गाएंगे. तो ऐसा पैदा हुए हम. तो बाद में आके, बहुत साल के बाद जब फॉर्मल ट्रेनिंग शुरू हुआ, तब उसकी पद्धति से हमने सीखा. तो पर इसके बारे में मैं काफ़ी बहुत लंबे समय तक सोच विचार नहीं की थी. पर एक ऐसा टाइम आया जब मैं सिखाना शुरू की थी. तब माँ बाप अपने बच्चों को ले आते थे मेरे पास, और मैं पहले सवाल उनसे करती थी कि आप गाते हो? तो वो बोलती थी नहीं हम नहीं गाते. बड़ी शर्म से बोलते थे कि हम नहीं गाते. पर ये जो जवाब है, ये बहुत सारे जो बड़े हैं, जो अडल्ट्स हैं, जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, बहुत लोगों से मैं सुनी हूँ. तो उनसे मैं एक बात शेयर करती हूँ हमेशा, कि जब मैं कुछ 23-24 साल की थी, तब तेलंगाना में एक जगह पे काम करती थी. तो एक ट्राइबल गांव में, जहाँ पे मेटल क्राफ्ट होता है, वहाँ पे एक 15-20 दिन रहे. तो रोज रात को गाते थे. तो रोज रात को लोग गाते थे. पूरा गांव गाता था. सुर में गाते थे, एकदम आवाज खोल करके, मन खोल करके गाते थे. कोई उसमें किसी को भी देख करके ऐसा मुझे नहीं लगता था कि उनके मन में भी ये सवाल है कि हम गा सकते हैं कि नहीं गा सकते. कि सवाल ही नहीं है. जो मैंने आपसे सवाल पूछा वो पूछना ही नहीं चाहिए.
ये भारतीय सभ्यता है। एक लाइन में आपको अगर आप समझना चाहते हो कि भारतीय सभ्यता संगीत के प्रति क्या बोलता है, तो ये है कि क्या संगीत गाना चाहिए, नहीं गाना चाहिए, उसके लिए कोई टैलेंट स्किल चाहिए, नहीं चाहिए, ये सवाल ही नहीं है, कोई सवाल पूछते ही नहीं है। ये ऐसा क्यों है, और आजकल आधुनिक जो माहौल है समाज का, उसमें ये सवाल क्यों पैदा होते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। थोड़े एक समरी उसका हम देखेंगे। ये आपका ही क्षेत्र है। तो ये 12वीं सदी में यादवों का राज्य यहाँ पे था। ये तो बच्चे जानते हैं, आप इतिहास में पढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। यस, यू स्टडीड अबाउट द यादवास ऑफ दिस एरिया। हाँ, सो 13th सेंचुरी मोर और लेस, तब यहाँ यादव बहुत मशहूर थे वो लोग। और उनका राजधानी पता है क्या? एनीबडी नोज कैपिटल ऑफ द यादव किंगडम? देवगिरी। देवगिरी को आजकल दौलताबाद बोलते हैं। आप जानते हो दौलताबाद कहाँ है? यहाँ से कुछ 100-150 किलोमीटर दक्षिण में है। पर ये पूरा यादवों का क्षेत्र था, और यादवों का क्षेत्र संगीतकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ये शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं है। तो शास्त्रीय संगीत जो है, उसका शास्त्र का आधार कुछ ग्रंथों में लिखा गया है, और उनमें से बहुत श्रेष्ठ जो हम मानते हैं दक्षिण में भी और उत्तर में भी, वो एक ग्रंथ है जिसका नाम संगीत रत्नाकर है। और संगीत रत्नाकर को लिखने वाले एक कश्मीरी पंडित थे, और वो कहाँ बैठ के लिखे? देवगिरी में। तो इधर उधर जा करके रिसर्च करके फंडिंग ले करके काम करने में भारतीय लोग जैसे कोई थे ही नहीं। 1000 साल पहले भी हम इधर उधर जा करके फंडिंग ले करके काम और रिसर्च करते थे, आज भी कर रहे हैं। 2000 साल पहले भी हम कर चुके हैं। पर ये यादव के जो राज्य है, ये संगीत, भारतीय संगीत के लिए एक बहुत बड़ा देन देके गए हैं यादव राजा। क्योंकि संगीत रत्नाकर में बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि आजकल अगर मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत बोलूं तो एक शब्द में आप इफ यू कैन एसोसिएट, इफ आई से क्लासिकल म्यूजिक, इफ यू हैव टू गिव मी अ वर्ड, व्हाट विल यू से? क्लासिकल म्यूजिक अगर मैं बोलूं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? क्या क्लासिकल संगीत में क्या? हाँ, पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी को कितने लोगों ने सुना है? यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी बहुत लोगों ने सुना है। हाँ, तो पंडित भीमसेन जोशी के आलाप बहुत मशहूर थे, अभंग बहुत मशहूर थे, पर आलाप बहुत मशहूर थे। और आलाप किस चीज की होती है? राग की होती है। आलाप राग की होती है। तो संगीत रत्नाकर में पहली बार हमें मिलता है कि अभी हम राग ऐसा एक स्वरूप को देखने लग गए हैं। तो उससे पहले राग नहीं बोलते थे उसको, कुछ और नाम थे उसको, ग्राम बोलते थे उसको, जाति बोलते थे, ये सब म्यूजिकल मोड्स थे। पहले बार संगीत रत्नाकर में इसका वर्णन होता है, राग इस चीज का वर्णन होता है। तो 1000 साल से, क्योंकि यादवों ने वो ग्रंथ का फंडिंग किया था, क्योंकि यादवों ने ऐसी चीजों को बहुत एनकरेजमेंट दिया था, हमें आज पता चल रहा है कि राग का इतिहास क्या है। तो ये जो क्षेत्र है, ये बहुत संगीत के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसके 1000 साल पहले एक चीज घटी थी यहाँ से और भी नजदीक एक जगह पे, अजंता। आप लोग तो गए होंगे अजंता? हाँ बच्चे, आप गए हो? यू हैव ऑल विजिटेड द अजंता केव्स? हाँ, तो देर आर ब्यूटिफुल पेंटिंग्स देयर ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यू हैव सीन देम? हाँ,
तो तब से हम इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रहे हैं। इसका मतलब है इंस्ट्रूमेंट्स बनाने का जो फिजिक्स है, जो मटेरियल साइंस का नॉलेज है, इंस्ट्रूमेंट्स के आकार जो हैं उस पे एक्सपेरिमेंटेशन जो है 2000 साल से पहले से होता हुआ आ रहा है, जो 2000 साल अब से 2000 साल पहले उन्होंने चित्र में बना के दिखाया है ना। तो भारत में ये है, हम कुछ साल यूएस में रहे तो कभी कभी ऐसे बाजार में गए तो ये बेकरीज वगैरह दिखते थे फ्रॉम 1973 ऑनवर्ड्स करके। मतलब उनको 1973 बहुत प्राचीन है, हमें तो अजंता भी प्राचीन नहीं है 2000 साल भी हमारे हिसाब से तो अभी परसों हुई ना ना ऐसे ही बोलते हैं ना, जो परसों अभी जो बना के गए ना उसके बारे में। अभी दादा नानी भी, दादा दादी नाना नानी, उसे कहानी भी हम सुनते हैं तो अभी बोलेंगे अब परसों हुई बात, तो उसको तो 600 साल हो गई होगी। तो हमारे पास में दो धाराएं हैं, एक जो है सामाजिक स्मृति, यू नो सोशल मेमोरी, एंड द अदर इज इतिहास, हिस्ट्री, जो किसी ने लिखा है। दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगर कोई टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा हो तो उसके ऊपर ज्यादा सवाल उठने की हमारे यहाँ कोई परंपरा ही नहीं रही। हाँ, हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें 2000 साल से चलती हुई आ रही हैं, हमें कोई शंका ही नहीं है कि ये ऐसे चित्र बनाते थे क्या। हाँ बिल्कुल बनाते थे, क्योंकि अब भी बना रहे हैं। ऐसा गाना गाते थे क्या? बिल्कुल गाते थे, क्योंकि अब भी गा रहे हैं। तो हमारी जो सामाजिक स्मृति है, उस सामाजिक स्मृति के ऊपर अवलंबन हमारे बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं। और जब गीता जी बता रहे थे कि गांधी जी का जो समझ था, द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन पीपल, आई थिंक गांधी जी ने ये भी समझा कि अगर जन सामान्य लोगों के बीच में ये समझ नहीं है तो शास्त्र नहीं बन सकता था। शास्त्रज्ञ यहां बैठ करके कोई ग्रंथ लिखे और जन सामान्य उससे कोई उनका लेना देना नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हाँ, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी न्यू, कि एक इंस्टीट्यूट में बैठ करके कोई वैज्ञानिक लोग कुछ कर रहे हैं और बाकी के लोग को साइंस के बारे में कुछ पता ना हो। भारतीय इतिहास में ऐसा नहीं है। जो जिसके ऊपर शास्त्र लिखा जाता है उसको दूसरे एक रूप में जन सामान्य के बीच में आप पा सकते हो। इसको मार्गी और देशी बोलते हैं। मार्गी मतलब एक मार्ग में चलते हुए जाना, बहुत एक डिसिप्लिन लगता है ना। अब कितने लोग बैडमिंटन खेलते हो यहाँ पे? हाँ, बैडमिंटन खेलते हो, आप भी खेलते हो, पीवी सिंधु भी खेलती है ना। वो उसका डिसिप्लिन अलग है और आप आनंद लेने के लिए खेलते हो। पर अगर कोई एक देश में कोई बैडमिंटन ही नहीं खेलता हो तो पीवी सिंधु वहां से आ सकती है? नहीं आ सकती है, क्योंकि किसी को समझ में भी नहीं आएगा कि वो क्या कर रही है, कोई डंडा लेके ऐसे ऐसे हिला रही है करके, है ना। तो ये है कि जन सामान्य में इसका अप्रिसिएशन और इसका ज्ञान दोनों होने से बड़ा काम कोई एक दो जाके कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि शारंगदेव यहाँ आके संगीत रत्नाकर लिखे, ये जरूर है, पर इसका मतलब है कि यहाँ के जन सामान्य में संगीत और संगीत का महत्व पूरा उनके मन में भरा हुआ था। इसीलिए वो राजा उनको आश्रय दे सकते थे, नहीं तो जन सामान्य उनसे सवाल पूछती, है ना, ये क्या आप कर रहे हैं, इनको आश्रय आप क्यों दे रहे हैं। तो ये एक चीज जो है, ये महात्मा गांधी जी के खुद के स्ट्रैटेजीज में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जन सामान्य के अंदर जो चीज है वो
वो बहुत ठीक तरह से समझने के बाद ही उनके जो पॉलिसीज है, स्ट्रैटेजीज है, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में हम पढ़ते हैं, वो सारी तो पॉलिटिकल लग रहा है, पर उसका आधार जो है वो एक समझ से निकल के आई। Scalar is organizing this. असं का? बरं. हां. इनको कोई पहचानते हैं? किशोरी अमोनकर, ये तो महाराष्ट्र के इतने मशहूर हैं कि पूछना ही, मतलब भीमसेन जोशी है, किशोरी अमोनकर जी हैं। इनके जो रियाज हैं, हजारों घंटे का रियाज है, हजारों, मतलब सैकड़ों नहीं, 100 से नहीं गिन सकते, और आखिरी तक रियाज कर रहे थे। अभी नहीं रहे, गुजर गए, पर भारतीय संगीत शास्त्र एक तरफ है, जन सामान्य का संगीत एक तरफ है, पर ये जो है ये साधना है। ये जो गांधी जी कह रहे हैं कि द कनेक्शन बिटवीन म्यूजिक एंड स्पिरिचुअलिटी, ये कहीं और हवा में नहीं तरंग रहा है। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये साधना से आती है। और साधना संगीत से कैसे करते हैं? जब हजारों घंटे बैठ के वो एकदम वो स्वर पे होना चाहिए, उसका कंस्ट्रक्शन परफेक्ट होना चाहिए। जैसे आप एक ब्रिज बांधते हो तो एक एक उसका मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होगा तो आप जाओगे उसके ऊपर? नहीं जाओगे। पर ऐसा समझो, इनका जो गाना है वो ऐसा है जैसे एक इंजीनियर ब्रिज बांध रहा है, एक 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 चीज जगह पे हो तो वो भूप बनती है, उस जगह पे वो नहीं है तो वो भूप नहीं है, वो कुछ और है। कुछ और सुर में आ गया तो ठीक है, नसीब है, नहीं तो वो बेसुर हो जाएगा और पुल गिर जाएगी। तो ये जो रियास और साधना का जो परंपरा है, ये भारतीय परंपरा है। इस भारतीय परंपरा से सिर्फ संगीत नहीं, आप कहीं सारे कला और कारीगरी काम को समझ सकते हैं। क्योंकि जब अब ये
अजंता को ही ले लीजिएगा, 2000 साल पहले यहीं के लोगों ने बनाया ना, और उसका कलर गया नहीं है, उसकी रंग गई नहीं है। तो ऐसे रंग कैसे बनाए थे? डिसिप्लिन से बनाए थे, साधना से बनाए थे। ऐसे नहीं कोई कल्पना और क्रिएटिविटी। आजकल बताते हैं ना, आई एम वेरी क्रिएटिव, आई एम वेरी कूल, बताते हैं ना वो कूलनेस और क्रिएटिविटी से नहीं आता है। वो हजारों घंटे बैठ करके उसको रगड़ के एक एक उसका रंग निकाल के वो मिल मिला के बनाने से एक अजंता का पेंटिंग तैयार होता है, और फिर वो 2000 साल टिकता है। तो इस संगीत में भी उसी लक्षण आपको दिखेंगे। तो अगर वो ऐसा हो, जैसे ब्रिज का लक्षण क्या है कि कितना भी उसके ऊपर आप वजन डालो तो वो टिके रहना है, वो गिरना नहीं है, क्योंकि लोग फिर पानी में गिर जाएंगे, है ना। और संगीत का क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाई डू यू वांट टू प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट? क्योंकि उससे भाव निकलता है। कुछ कुछ लोग ऐसे, भीमसेन जोशी जी के बारे में वो कहानी बताते हैं ना, कि वो कहीं वो उस तरफ ना, पुणे की तरफ जो सह्याद्री है, वहां पे बहुत जंगल है ना, पेड़ और जंगल है। वो कहीं एक गांव में जाके प्रोग्राम के बाद रात को लौट रहे थे, और लोगों ने बोला कि नहीं मत जाइए अभी, क्योंकि बहुत चोर रहते हैं रास्ते पे, वो पकड़ लेंगे आपको। और उनको दी गई होगी कुछ सामान वगैरह ना, वो पोटली में बांध करके रखे हैं। वो बोले कि नहीं मुझे और कल प्रोग्राम में पहुंचना है, तो मैं तो जाऊंगा। तो ये गाड़ी में बैठ के आ गए, और वैसे उन्होंने बोला कि चोर आके उनको घेर लिए, तो इनको खड़ा कर दिए। तो वो चोर का जो लीडर था वो आया और गौर से देखा पंडित जी के मुंह को ऐसा, और परिचय पूछा। तो लोगों ने, शिष्य लोगों ने बताया कि वो कौन है। तो वो बोले कौन सा अभंग है हरि के ऊपर, जो बजे हरि को सदा, वो गाने के लिए बोले पंडित जी को, वही जंगल में, वही रात को चोर के सामने जो भजे हरि को सदा गा के दिखाएं। तो वो रोने लग गया। वो बोला मैं चोर जरूर हूं, पर एक जमाने में मैं स्कूल जाता था, और मेरे पूरे जिंदगी में आनंद का एक ही अवसर मिला जब एक म्यूजिशियन आए थे और ये गाना गाए थे, और उनका चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, और वो आप थे। हाँ, तो उसने बोला कि वो लिए हुए सामान वगैरह जो उनके पास में से जो ये ले लिए वो दिया, और उनके पास से और जो चोरी का माल था वो भी उनको दिया, गाड़ी में बिठाया। वो बोला कि हम तो छोड़ देंगे, वो आगे वाले छोर नहीं छोड़ेंगे, तो हम भी आ जाते हैं आपके साथ उनको बोलने के लिए कि नहीं इनको कुछ नहीं करना है, इनको छोड़ देना है। वो होता है रियाज का असर। उस असर से एक चोर का भी मन पिघल जाता है, उसको बोलते हैं रस। तो भारतीय संगीत के संप्रदाय में रस के ऊपर बहुत ग्रंथ हैं कि रस कैसे पैदा करना है, और इसमें यह भी है कि एक संगीतकार जो है ऐसा रस पैदा करना है, ऐसा एक इफेक्ट लाना है, तो वो कैसे रहने चाहिए, रियाज कैसे होनी चाहिए, उनके साधना कैसे होना चाहिए, सब है। इट इज ऑल देयर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ फॉलोइंग इट। तो आप भी अभी जाएंगे तो अगर कोई बेसुर गा रहा है तो यू मस्ट नॉट टॉलरेट इट। बिल्कुल सही है। अगर आपको मन में आया कि अरे यार ये बेसुर गा रहा है, खामखा इसका रियाज ठीक नहीं हुआ है, इसने साधना प्रैक्टिस नहीं की, तो ये सही है, ये सच बात है, और इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं है, चाहे वो बहुत मशहूर हो। हाँ, ये कॉन्फिडेंस जन सामान्य में होना चाहिए कि रियाज हुआ है, साधना है और साधना नहीं है। ऐसे जन सामान्य ने सोचा, इसीलिए आज हमें एक अजंता मिल रहा है, इसीलिए आज हमें तंजावुर में इतना बड़ा बृहदीश्वर का मंदिर है। आपने सुना होगा, दक्षिण में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, सब हजारों साल से खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? क्योंकि किसी ने तो बोला है ना
कि ठीक से करना है, हम देख रहे हैं आपको। तो ये है संगीत का जगह समाज में। संगीतकार चाहे बड़े हो, पर समाज के प्रति बिल्कुल एक ह्यूमिलिटी और एक उसका लक्षण दिखना चाहिए। और उसका लक्षण कब दिखेगा? जब हम फैन होके नाचेंगे तब नहीं, जब हम रसिक हो करके, जब हम सामने बैठ करके जानकारी ले करके मन में ये रख करके कि है इन्होंने रियाज किया है, ये लेकर के जब हम सुनते हैं तब ये बनती है बात। हाँ, अब गांधी जी ने भी वो वैसा एक माहौल पैदा किया तो वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस। सारे लोगों ने अगर लोग कहे होते कि यार चलो क्या ये डांडी मार्च पे जाना है, घर जाते हैं, या नमक इधर क्या है उधर से ले लेते हैं, या क्या खादी वादी पहनना है कुछ और पहन लेते हैं ना, क्या है इसमें, नहीं किए ना। उस माहौल में लोग आकर के साधना किए, छोटे नहीं बड़े नहीं, सब लोगों ने साधना की। तो साधना का महत्व आज के दिन में आपको कहां कहां देखने को मिलेगा? एक जगह, वो है संगीत। माफ कीजिए, फिर से एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सब यूट्यूब के हैं। और छोटा सा झलक ही दिखा रही हूं आपको, क्योंकि समय कम है। संगीत के परंपरा में लोग प्रदर्शन के लिए संगीत आजकल तो स्टेज पे गाते हैं, लोग आते हैं, सुनते हैं, वाह वाह क्या बात है, उसके लिए भी हम गाते हैं। ये कौन थे पता है? भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी है। ये तो गांधी जी के समय से गा रहे हैं, है ना। और उनके बहुत जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट था उसमें बहुत गाना गाए हैं। इनके आवाज में दक्षिण भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय गीत गूंजी है। हाँ, तो ये जो है इनका संगीत सिर्फ भक्ति के लिए है, खुद के लिए कुछ रखे भी नहीं है, गाते भी नहीं थे। इनसे हम मिल चुके हैं कई बार, तो एकदम मतलब इनको कुछ एहसास ही नहीं है कि ये कितने बड़े हैं, कि इनके वजह से कितने लोग रो पड़ते हैं, कितने लोग आनंद में घूम जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं है।
ये अपने धुन में, अपने जो है मन में, उस भक्ति के माहौल में ही रहे आखिर तक, ये भी अभी नहीं रहे। तो संगीत का ये एक और भी पर्पस है कि सिर्फ मशहूर होना, सिर्फ लोगों से तालियां सुनने के लिए लोग नहीं गाते थे। और ये सिर्फ ये नहीं है, ये भारतीय परंपरा है, ये भारतीय सभ्यता है कि 200-300 साल पहले जो लोग गाएं और बजाएं, वो किसके लिए गाएं? लोग सुनने के लिए तो आए थे, वो तो रोक नहीं सकते। अब दक्षिण भारत में ज्यादातर मंदिरों में गाते थे, हाँ, तो इसीलिए दक्षिण भारत के गीत भी सारे भक्तिमय रहेंगे, उनका रस तो थोड़ा सा वैसा ही रहेगा। मंदिरों में होते थे, मंदिरों में बड़े बड़े उत्सव होते थे, और बड़े उत्सव में 12 घंटे 13 घंटे संगीत के कार्यक्रम होते थे। तो एक एक कॉन्सर्ट 3-3 4-4 घंटे के होते थे। और एक नागस्वरम करके एक मंदिर में बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई जैसा बड़ा रहता है, उसमें 2 नादस्वरम और 2 तविल जो मृदंगम जैसे बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। वो जब रथ यात्रा निकलती थी, भगवान को देख करके उल्टे दिशा में बजा करके 3 घंटे चलते हुए आते थे। हाँ, आजकल ये आयरन मैन वगैरह चलता है ना, मतलब कसरत करके इधर उधर जाते हैं, दौड़ते हैं, तैरते हैं, सब करके बताते हैं कि, पर 3 घंटे 4 घंटे बजाते हुए, उल्टे दिशे में चलते हुए रात को, ये किस लिए किए? क्या मिलता था उनको? कुछ नहीं मिलता था, हमें मिला है, उनको कुछ नहीं मिला। उनको संगीत में लय होकर के रहने का एक मौका तो मिला, पर संगीत तो हमें मिला ना, वो वैसे बजाए करके आज हमारा संगीत जिंदा है। अगर हम छोड़ देंगे तो और 100-200 साल में तो कोई नहीं रहेगा। बस हम इंस्टाग्राम में पोस्ट देख सकते हैं, वो सेव होता है कि नहीं मुझे पता नहीं। मुझे, आप लोग इंस्टाग्राम करते हो? नहीं करते हैं, अच्छे बच्चे। तो आजकल के बच्चे तो इंस्टाग्राम में कुछ हुआ, आज ये हुआ तो इमीडिएटली एक फोटो डाल देते हैं। वो सब रहेगा, पर संगीत रहेगा कि नहीं वो पता नहीं, क्योंकि उसके लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर और इसकी और कोई सोशल मीडिया हैंडल तो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा। पर उसके लिए साधना और किसी और एक अपने से कोई एक बड़े चीज के लिए ये सारे चीजें करना, ये ऐसा एक भावना को लेकर के किए तो हजारों साल तक कुछ जिंदा रहता है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि जब आप गांव में जाते हो तो आप पूछते नहीं हो ना कि आप गा सकते हो, सब लोग गाते हैं, सब लोग, क्योंकि ये आनंद का एक एक्सप्रेशन है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सेलिब्रेशन, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस, कि कुछ हो तो शाम को नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं। तो और वो जो गाने हैं ना, वो सब जैसे गा सकते हैं वैसा होगा, सब मिल करके गा सकते हैं। पर ये जो मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, तो इसमें जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स, अरिथमेटिक जो है, आप देखिए उनका बॉडी में कोई भी, आप, इट विल नॉट लुक लाइक देयर इवन थिंकिंग। ये वो इसको क्या बोलते हैं, डांडिया जैसे, इसको कोलाटम बोलते हैं। ये आंध्रा के हैं, तेलंगाना के हैं, बहुत मशहूर जगह है तेलंगाना में, जहाँ पे ये हर साल काफी सारे टाइम्स पे होते हैं ये। तो पर आप देखिए कि इनके स्प्लिट सेकंड में कितना ये कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस निकालते हैं। ये तो आपको देखना ही पड़ेगा करीना कपूर को, क्या करें। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो लाल, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्या? होशियार नहीं हूँ, पर मैंने पता है कि प्यार क्यों होता है। अच्छा हुआ इसका साउंड नहीं आ रहा ना।
अच्छा, इसका नाम आप वहां पे जड़कोप्पू दिखेगा। जड़कोप्पू ये एक स्पेशल टाइप का डांडिया है जिसमें वो डांडिया के जो काठी हैं उसमें रिबन्स या ऐसे बांधे रहते हैं। तो इनका जो पैटर्न्स ये बनाते हैं उससे वो वेणी जैसे ब्रेड हो जाता है। तो वो पूरे रात उसको बनाते हैं और निकालते हैं पूरे रात गाते हुए नाचते हैं। खैर इसमें नहीं है वो रिबन्स नहीं है, सिर्फ नाच दिखा रहे हैं ये या बट वो शुरू नहीं हुआ है अभी। एक एक काठी पे वो रिबन बांधा हुआ है और वो रिबन का क्या होता हुआ होगा ऊपर। तो ये रात भर होता है। थोड़ा सा या ज्यादा कोई पी टीचर ने बोल दिया तो आज बहुत काम कर लिया, बहुत दुखता है, आज मैं थोड़ा सा सो जाऊंगा, ऐसा लग रहा है ना। ये रात भर नाचते हैं और फिर अगले दिन जाके इनको तो खेती पे काम करना ही पड़ता है कोई सो नहीं सकते, रात भर नाचते हैं और जाते हैं, क्योंकि वो संगीत ही वो एक दवाई जैसे बन जाता है। वो जो, और ये कई सारे देशों में भी ये है कि ये जो रेपिटेटिव ट्यून्स है ना, वो उसमें वो द माइंड गेट्स हिप्नोटाइज्ड एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ इट यू आर नॉट टायर्ड, यू आर एक्चुअली वेरी फ्रेश। ये यहाँ पे भी देखने को मिलता है। इस यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कोफ बोलते हैं। और ये हाथ से खेलते हैं कि काठी से खेलते हैं? हाँ, यस, दिस इज वेरी कॉमन एवरीवेयर इन इंडिया। यस, यस, yes, yes. And do they also have this tying of cloth thing? See, this is amazing. No, it's been there everywhere. So they figured out that there can be a visual representation of rhythm. That thing that happens is a visual representation of rhythm. Can you see how that transference is happening? It is so amazing, ना? आप ताल से एक शिल्प बना रहे हैं। वो जो है वो मटेरियल तो कपड़े का है, पर उसको शिल्प बता सकते हैं ना, वी कैन कॉल इट एज काइंड ऑफ स्कल्पचर। हाँ, तो आप रिदम से एक स्कल्पचर बना रहे हैं। एंड ये तो हमारे जन सामान्य के लोग बनाते हैं, इसके लिए कोई शास्त्र वास्त्र नहीं है। पर इस शास्त्र नहीं है लिखा हुआ, पर इसमें एक समझ है, एक पद्धति है, इसको सीखने का एक तरीका है, सब है।
ये तो आप पहचानेंगे, यहाँ पे होता है। ढोल ताशा के बिना तो मैं तो पुणे में रहती हूँ। हाँ, तो तीसरा चौथा दिन तो हमारे यहाँ मोहल्ले में ढोल शुरू हो गया तो बच्चे घर पे रहते नहीं है। वो ढोल कहीं और एक सिंगल वो बजाते हैं, एक 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 जो बीट बजाते हैं वहीं से शुरू हो जाते हैं लोग भागने घर छोड़ के। और एक एक साल में एक एक कोई नया ग्रुप आता है, कोई सिर्फ लड़कियों वाला ग्रुप आता है, सिर्फ 12 साल से कम वाला ग्रुप आता है। एक एक साल नया ग्रुप आता है। पर महाराष्ट्र का एकदम वेरी स्पेशल एक्सपीरियंस, इट्स नॉट जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, इट्स नॉट जस्ट द वे ऑफ प्लेइंग, ये एक उत्सव का रिप्रेजेंटेशन है, एक एब्सोल्यूट सेलिब्रेशन, नो होल्ड्स बार। ये तो एक्चुअली समाज जो है, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ समाज? कैन somebody give me an English translation for समाज? When आप हिंदी में समाज बोलते हैं तो विजुअल क्या आता है आपके दिमाग में? बच्चों से पूछते हैं, समाज बोलने से क्या विजुअल आता है? या बड़ों से पूछते हैं? आई डोंट नो। That you live in, live with, हाँ, people coming together. So मुझे भी समाज बोलने से I actually imagine a space where there are a lot of people who know each other. For me, society does not bring that. Society for me is like, I don't know what. I mean, it's a very abstract thing. वो मार्स जैसे बोल, मार्स भी नहीं, प्लूटो बोल, आजकल तो पिक्चर्स निकलने लग गए। Because of the, you know what, telescope? The new telescope which has come, which is said, no? Okay. So because of the new space telescopes we are seeing more and more, नहीं तो कोई और galaxy, Andromeda galaxy बोलेंगे तो कोई, we don't know what it looks like, no? तो society is a word for me which is very abstract, ऐसा है। पर समाज बोलने से मेरे दिमाग में कोई एक पिक्चर आता है, जो साथ में ढोल बजाते हैं, जो साथ में गाते हैं, जो साथ में नाच सकते हैं, क्योंकि किसी के भी साथ हम ये सारी चीजें नहीं कर सकते। वी हैव टू बी एबल टू हैव सम कनेक्ट, तब जाके वो समाज बनती है। तो पारंपरिक जो समाज थे वहां पे तो द डेफिनेशन इज इवन क्लोजर, एक दूसरे को जानते भी थे, परिवार वाले होंगे या अड़ोस पड़ोस के लोग होंगे। आजकल देर हैज टू बी सम बाइंडिंग थिंग, नो? तो संगीत एक चीज है जो समाज को आकार देती है। और मुझे ये वीडियो इसलिए अच्छा लगा कि इट्स अ कोलाज, किसी ने वो कमर्शियल बनाया है, पर मुझे इसलिए ये अच्छा लगा कि उनके एक्सप्रेशंस जो हैं, दे आर ऑफ नोइंग ईच अदर, you know, they're playing and they're smiling at each other, they're playing and they're knowingly making some gesture at each other. Oh, अरे यार।
मैं सिर्फ ग्लिम्स दिखा रही हूँ, पर ये बहुत अच्छा वीडियो है। उसमें एक्सप्रेशन सबके ना इतने आनंदमय एक्सप्रेशन है, दे आर सिंपली जस्ट एंजॉयिंग इट। और आप तब एंजॉय कर सकते हो जब आप जानते हो कि ये जगह अपनी है। संगीत तब निकलती है जब आपको पता हो कि द ग्राउंड अंडर योर फीट इज योर्स, एंड if you sing together, the ground under your feet will become yours. And this was something that was used a lot in the independence struggle. क्योंकि इतना गाने की क्या जरूरत थी ना, मतलब लिखते तो ले लोग, भाषण देते थे, सब करते थे, पर जब वो उठ करके एक गाना गाएं तो सारे उनके पीछे चले गए, है ना। एक वैष्णव जन तो गाएं तो सब चुप होके बैठ गए। आजकल भी ऐसे कोई नए गाने भी निकलते होंगे, पर वो गाने का तो इफेक्ट जो है उसको गांधी जी ने यूज किया है, और एक बहुत बड़ी चीज करने के लिए। अब जो मतलब बड़े हैं हमारे जैसे, हमें भी सुनकर ही जानकारी है कि उस टाइम पे क्या हुआ। अब मेरे माँ बाप है जो देखे हैं 1947, हम भी किताबों में ही पढ़े हैं, हमें क्या पता है, पर हमने सुना है। वी हैव, अरे दैट हैज नॉट कम, आई विल प्ले इट लेटर। आपको मैं दिखाती हूँ वो एक गाना, वो चरखे के ऊपर जो गाना है वो लोड नहीं हुआ है, पर नेशनल म्यूजिक इज देयर एवरीवेयर, यू कैन गो एंड लिसन एंड यू कैन सी कि आपको ये भी लग सकता है कि अरे इस गाने से लोग उठकर चलने लगे इसमें क्या है ना। पर जब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि जब 100, 200, 500, 1000 लोग गा रहे हैं वही चीज, एक ही चीज गा रहे हैं, तो उस समाज का मानसिकता कैसे बन सकता है ना। सो दैट कैन बी द एफेक्ट जो बोलते हैं ऑफ म्यूजिक। संगीत जो है ये पहचान भी देता है। It can actually become the symbol of your identity. If somebody asks me कि आप कौन हो, मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मेरा ये नाम है, ये मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, हाँ, और मैं यहाँ से आती हूँ, फलाने यहाँ से आती हूँ, और ये मुझे कैसे पता है? आप बताइए आपका नाम क्या है? आप ही? आप? हाँ, अच्छा शीला पांडे जी, आप कहाँ से हैं? अच्छा, आप इंदौर से हैं। और बताइए। आप यहाँ कैसे आए? तो बहुत साल हो गए आप यहाँ आकर के? अच्छा, तो ये बहुत बड़ा एक डिटेल आपने छोड़ दिया तो ये शीला जी हैं, ये इंदौर से हैं, 40 साल हो गए इनको जलगांव में आकर के। तो अगर आप राजस्थान जाएंगे और राजपूत या किसी और से आप पूछेंगे जो थोड़े से मतलब पहले के हैं, जो पुराने लोग हैं, हाँ, तो वो आपको गांव बताएंगे, पिता के नाम, दादा के नाम, उनके दादा के नाम सब बताएंगे आपको। मुझे तो याद नहीं है, मैं दादा नाना तक तो मुझे क्लियरली याद है, उनके पिताजी का नाम शायद याद, मतलब दादी के नाम वगैरह मुझे तो याद है ही नहीं। मुझे 3 पीढ़ियों के नाम मालूम। आपको 3 पीढ़ियों का नाम याद है? वो बच्चा आपको याद है? आप बताएंगे? कौन बताएंगे मुझे? वो बच्चों के ग्रुप में से कोई बताएं प्लीज। नहीं, नो वॉलंटियर्स, डर गए। कोई किसी का नाम बताइए। शीला जी आप बैठ जाइए थैंक यू। कोई नहीं है? अच्छा, थैंक यू जी। आपका नाम बताइए। दुर्गा। दुर्गा, हाँ दुर्गा। और आपके बारे में क्या बता सकते हैं आप? मेरे बारे में मुझे हिंदी नहीं आती।
आप क्या करते हैं? मी FIBA ला आहे, FIBA ला. बेंडाळे कॉलेजला म्युझिक विषय निवडला आहे. बरं. आणि तुम्ही जळगावला इथलाच आहात का? नाही, एरोंडोल तालुक्यात खर्ची रवंजा इथं राहते मी. तिकडनं. हा. तर तुमची म्हणजे वडिलांचं आजोबांचं नाव वगैरे तुम्हाला हो, आठवतं? वडील, आजोबा, त्यांचे आजोबा. पणजोबा पण. हो, पणजोबा. आणि त्यांचे? नाही. त्यांचं नाही. म्हणजे 3 पिढी तुम्हाला पण आठवते सहजच. Yes. हे जे लोक आहेत, बसा तुम्ही. फक्त मला मदत हवी होती, म्हणजे हे इंट्रोडक्शन करण्यासाठी तुम्हाला मी प्रश्न विचारले. ये जो लोग हैं ये लांगा समाज के हैं, ऐसे मांगणियार समाज के भी लोग राजस्थान में रहते हैं. ये जो लोग हैं आजकल इनको फोक म्यूजिशियंस बुलाते हैं, पर ये और जो कम्युनिटीज हैं जैसे राजपूत हैं, सिंधी सिपाही हैं, बिश्नोई हैं, इनके 40-50 पीढ़ी तक नाम को याद रखने वाले हैं. ये सुबराज करके गाते हैं, ये गाने में ही हैं, और 40-50 पीढ़ी तक कोई किताब नहीं, कोई पढ़ाई वढ़ाई की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, याद रखते हैं. तो संगीत जो है ये याद रखने का एक माध्यम है. ये याद कितना भी आप चाहे आप याद रख सकते. बहुत बड़ा सर्वर है. It has unending memory, a possibility of storing a lot of data. तो इनका एक छोटा सा झलक मैं दिखाऊंगी आपको. अच्छा, ये बज नहीं रहा है, पता नहीं क्यों. This link is not working. This is not. But I thought the file was transferred. It didn't get transferred. Yeah, but it's embedded in. Okay. Maybe the link is in that. नहीं, इसमें प्ले बटन ही नहीं दिख. नहीं, वो नहीं बजेगा. इसमें नहीं है. आपके पेन ड्राइव में शायद वो लास्ट में मैं आपको सुनाऊंगी इनका. तो इनका जो है एक बहुत खास विषय है. इनके यहाँ ये सारे लोग मुसलमान हैं और इनके सारे जजमान जो हैं, इसीलिए इसको मैंने जजमानी संगीत नाम दिया है, क्योंकि जजमानी एक व्यवस्था है. ये पूरे भारत में जजमानी व्यवस्था एक जमाने में हुआ करता था. जो जजमान हैं उनके लिए बहुत सारे लोग चीजें करते थे. कुंभार लोग, जुलाहे लोग वो करते थे, और लोग एक दूसरे के भी जजमान होते थे. जजमान मतलब जमींदार नहीं है. अगर मैं जुलाहा हूं तो मैं कुंभार का जजमान हूं और कुंभार मेरा जजमान है. जिसके लिए मैं कुछ बना के देता हूं वो हमारे जजमान है. तो वैसे ये अपने जजमान के लिए गाते थे. तो ये जजमानी का क्या, जजमानी प्रथा का एक ही ये है कि इनके बिना जजमान की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है. न शादी हो सकती है, न बच्चा पैदा हो सकता है, ना कोई मर सकता है. और मरे भी कोई तो उसका अंतिम संस्कार तो इनके बिना तो हो ही नहीं सकता है. तो अगर ये संगीत का रूट गया तो उनका सब बंद हो जाएगा. तो ये एक रिश्ते में बंधे हुए थे. हाँ, दिस इज नॉट अ मार्केट प्लेस. दिस इज अ प्लेस वेयर देयर इज रिलेशनशिप. हाँ, तुमने उसके लिए कुछ किया तो उसने तुम्हारे लिए कुछ किया, तो गड़बड़ नहीं कर सकते हो बीच में. तुमने नहीं किया तो वो भी नहीं करेगा तुम्हारे लिए. तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है. तो एक समाज का ये भी है कि संगीत से आप एक दूसरे को बांध भी सकते हो, कारीगरी से बांध सकते हो और संगीत से भी बांध सकते हो. और संगीत में जब बांधना जिसको बोलते हैं, उसमें राग का जो पहचान हमारे बीच में है. अभी हम बोलते हैं भूप है, यमन है. कोई संगीत के स्टूडेंट्स बताएं और कोई राग. हाँ, मोहन, बागेश्वरी,
कमाज। तो ये सारी चीजें एक स्कीम में आते हैं ना, कि ये राग हैं, इसके इतने रागिनी हैं वगैरह वगैरह, है ना। इनके यहाँ 6 राग हैं, एक एक दिशा के लिए एक एक राग है, 4 राग, और एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। तो इनका जो संगीत है वो ज्योग्राफी बेस्ड है, हाँ, इट्स डायरेक्शनल। तो इनके शादियों में एक खेल खेलते हैं जहां पे एक चीज को छुपा देते हैं, और मतलब जो लड़की है वो लड़कों की तरफ से या उस लड़के का ही कुछ चीज छुपा देती है, और इनके जो संगीतकार है वो बजाना शुरू कर देते हैं। तो इनकी समझ इतनी होनी चाहिए कि वो जो गाना बजा रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है करके ये समझे तो वो चीज मिल सकती है इनको। तो संगीतकार इनको क्लूज देते हैं कि अभी आप उत्तर की तरफ जाओ, अभी आप थोड़ा मुड़ जाओ दक्षिण की तरफ, थोड़ा मतलब एक छोटा सा झलक दिखाएंगे और फिर बदल देंगे, ताकि आप थोड़ा राइट जाके लेफ्ट जाना है तो थोड़ा आप पश्चिम की तरफ जाओ और फिर उत्तर की तरफ मुड़ जाओ। पूरा संगीत में इंक्लूज देते हैं, कंकड़ बोलते हैं इस गेम को। तो इसका मतलब है कि सब लोगों को ये सारे गाने और उसके जो वो राग नहीं बुलाते हैं, इसको एक एक को एक एक नाम से बुलाते हैं, इसकी जानकारी पूरी तरह होनी चाहिए। तो ये उस जानकारी से जुड़े हुए समाज हैं। ये जो जजमानी समाज है ये संगीत के जानकारी से जुड़ी हुई है, और इतनी गहरी जानकारी है कि ये लोग, इनको गूगल मैप की कोई जरूरत नहीं है ना, ये खुद है गूगल मैप। अब इनसे पूछ लेंगे तो ये बता देंगे कि कहाँ जाना है, अगर इनको पता हो तो। तो ये हो गया संगीत एक, इट्स अ टूल फॉर मेमोराइजिंग मेनी थिंग्स। तो क्या हम इसको शिक्षा में ला सकते हैं? क्या इसका शिक्षा में कोई रोल होगा? तो ये सवाल जब मैंने पहली बार पूछा तब हम कुछ और चीजों के बारे में सोच रहे थे और किसी और दिशा में काम कर रहे थे। अच्छा, आपको पता है कि दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, तंजावुर में बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य हुआ करता था। हाँ, कुछ लोगों को पता है शायद। There is a very big and nearly 150-year long rule of the Bhosles of Tanjore। और आज जो कर्नाटिक म्यूजिक जिस रूप से हम सुन रहे हैं उसमें इस जो मराठाओं का बहुत बड़ी एक भागीदारी रही है। उनके कोर्ट्स में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं तंजावुर में, उनके द्वारा बहुत सारे रचनाएं हुई है। खुद राजा थे जिन्होंने कंपोज भी किए, बहुत सारे नाटक लिखे, बहुत सारे देवदासी थे उनके कोर्ट्स में, जो मतलब आज के ज़माने में फिर भी ये 1700s की बात है तो रिकॉर्डिंग्स तो नहीं मिलेंगे, पर ग्रंथ में मिलते हैं। और ओरल ट्रेडिशन जो देवदासियों ने मतलब 200 साल से गाते हुए आ रहे हैं, उसको तो है, कोई नोटेशंस हैं, कोई हैं, कुछ लोग बचे हुए थे अभी भी, यू नो, इन 20th century they were there, so we know, people have heard them, so for 300 years there is a memory of how that music sounded like। तो उसमें एक आए सरफोजी, महाराजा सरफोजी, ये 1800s के करीब, एंड ऑफ 1700s और अर्ली 1800s, 1830 तक शायद थे, और इनके पास कुछ नहीं था। तब तक ब्रिटिश लोगों ने इनके पास से सब कुछ ले ली थी। एक ट्रीटी साइन की और इनको एक किला दिया, एक महल और एक लाइब्रेरी, बस इनके पास और कुछ नहीं था। ये करीब करीब आखिर के एक राजा थे, पर आज बहुत मशहूर है क्योंकि उनको जो मिला वो जो एक लाइब्रेरी, उसको इतना बड़ा बनाए इन्होंने कि आज दक्षिण भारतीय
सांस्कृतिक परंपरा के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ जानकारी इकट्ठा करना है, तो इनके सरस्वती महाल लाइब्रेरी में जाना ही पड़ेगा। इतने ग्रंथ है वहां पे, इतने चीजें हैं। तो पर इन्होंने इतना तक सीमित नहीं रखा। ये एक्चुअली लूथरन स्कूल में पढ़े हुए हैं। ही वॉज एजुकेटेड इन एन इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल। हिज मेंटोर वॉज अ डच प्रीस्ट। सो ही वॉज, ये वो संधि में थे। He was in that junction, you know, of the Marathas and the British. So he knows what is there in the world, what the British are bringing in, he knows, but he also knows what India is losing. दोनों जानते थे ये। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्कूल्स शुरू की, नव विद्या कलाशाला करके, उसमें सब सिखाने की थी। He wanted to teach, you know, traditional Indian knowledge, Sanskrit, Tamil, Marathi, Granth, craft, but also what British were bringing in, you know, modern mathematics, modern astronomy, सब सिखाते थे उसमें। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, ये मुझे मिला, और कोई संगीतकार हो जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो है, bag. Just pull out that one book. इसको देवेंद्र कुरवंजी बोलते हैं। This is actually a book of geography and astronomy, but written entirely in poetry, based on a folk poetry style that was very famous in Tamil Nadu called Kuravanji. And the Kuravanji Nataka is where there is a Burdin. इथे काय म्हणतात, बुर्डिन म्हणतात जिप्सीला, म्हणजे जे असे पामिस्ट्री वगैरे ते हे सांगतात ना, त्यांना काय म्हणतात तिथे? ज्योतिषी नाही, हे जे ट्रायबल लेडीज येतात, विमेन येतात, हा, शामन्स काइंड ऑफ थिंग, जे म्हणतात की असं असं होईल, असं बरं होईल हे आणि ते. तर एक प्राचीन मराठी शब्द आहे बुर्डिन म्हणून. हा, दिस इज देअर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. दीज पीपल आर देअर. हा, भगत, हा, लिटिल बिट, हा, पण विमेन ना, बायका असतात. So in this Nataka, the Burdin comes to Indralok, आणि इंद्रा कुठेतरी फिरायला गेलो असतो, meaning he's always, आणि इंद्राणी असते आणि ती म्हणते हा कधी येणार परत, आता काम म्हणजे घरात काही बघत नाही वगैरे. So this Burdin is telling her where all Indra has gone, and the book is about every country in the world. It is modern geography. But Indra is of course not only on the world, no, he is also somewhere antariksh मध्ये कुठेतरी तो फिरत असतो. So there is also modern astronomy in it. The galaxies, you know, that the sun is in the middle, heliocentric. No? Do you know in India who actually proposed the heliocentric? You know what heliocentric means? Sun is in the, helio is helium, no? Sun has helium, right? कुठल्या वर्गात आहात तुम्ही? 8th. You know that sun is helium, no? No, not. That lesson has not happened yet, okay. तर हिलिओ म्हणजे सूर्य. तर सूर्यमध्ये आहे, भूमी नाही, पृथ्वी नाही. This theory was first proposed by Aryabhatta. And then it went away, and then of course later on Galileo, and you know, and then the Newtonian physics comes and so on. But much before, Aryabhatta already proposed that the sun was in the middle of the galaxy. पण असं फक्त न सांगता हे आधुनिक विज्ञान वगैरह, everything he brings in and he makes it into a long poetry, a song with names of raga and all that. Now we don't know how it is sung. We only have the text.
But see, if I can tell the children, I'll teach you geography as songs. आवडेल का? नाही आवडणार. If we can put some nice peppy tunes to your thing, memorizing it may be easier, no? That's what he must have thought also. I don't know. So this experiment of using music to teach modern education is from 1800s, early 1800s. It is just to show you one little thing that the reason why I brought this up is this idea of modernity, modern education, modern society, tradition, traditional knowledge. This maramari has been happening for many hundreds of years. और लोग ये सवाल पूछ भी रहे हैं और अपने हिसाब से जवाब दे भी रहे हैं. तो ये चीज नहीं है कि सभ्यता और समाज और संस्कार कोई पीछे बहुत छोड़ के आए हुए चीज हैं, ऐसी बात नहीं है. ये हमारे हाथ में है ना? हम कुछ कर सकते हैं तो आगे 500 साल, 1000 साल, 2000 साल कुछ छोड़ के भी जा सकते हैं. तो ये संगीत के क्षेत्र में ये सारे सवाल कैसे, मतलब कोई 1000 सालों से आ रहे हैं, तो इसके बारे में ये एक छोटा सा एक झलक, एक ग्लिम्स था. तो इसमें बहुत गहराई में जाकर के देखने वाली चीज़ें हैं, पर आज मैं यही ख़त्म करूँगी. और बहुत धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली. और कोई सवाल हो, कुछ हो तो आप पूछ सकते हो. मुझे एक बात पूछनी थी कि हम लोग मारवाड़ी लोग हैं और हर चीज में हम लोग गाने गाते ही हैं, तो उनके बारे में आपका कुछ जानकारी है? मारवाड़ी राजस्थान से रहते हैं हम लोग, बिलोंग करते हैं. तो और हर क्षेत्र में सब लोग गाते हैं, तो बोलने का तो मकसद ही यही था. अच्छा कि किसी एक के लिए दूसरे लोग आके जो गाएंगे. आपके राजस्थान में ही अभी रहा है ये जजमानी संगीत. हाँ. बाकी भारत में खत्म हो चुका है, सिर्फ राजस्थान में ये रहा है. पर इसका मतलब ये नहीं कि घर के लोग गाते नहीं, घर के लोग साथ में गाते हैं, वो लोग भी आते हैं साथ में. पर इसका कुछ, इसके बारे में कुछ है क्या? हाँ, बहुत है जानकारी. ये करीब 3-4 ऐसे जातियां हैं जो सिर्फ मतलब उनकी वृत्ति सिर्फ गाना है. हाँ. वो मरते टाइम भी वो ही आते हैं, वो उनके साथ साथ हम लोग गाते हैं. पर वो गाते हैं. हाँ, उन लोगों की वहाँ पे उपस्थित होना बहुत जरूरी है. पहले उन्हीं को बुलावा दिया जाता कि ऐसा प्रोग्राम है, फिर करिए. तो उसके बारे में भी और आजकल ना ये लोग शायद ये सिस्टम थोड़ा टूट रहा है, तो इन लोगों को फोक सिंगर्स बुलाते हैं, सूफी सिंगर्स बुलाते हैं. ये तो सूफी सिंगर्स नहीं है, पर उनका वो जो गाने का जो उनका आवाज का जो प्रभाव है वो इतना है कि वो कुछ भी गा सकते हैं. आप माइकल जैक्सन का गाना भी दे देंगे तो वो गा लेंगे आराम से. उनका ट्रेनिंग इतना तगड़ा रहता है. आपने जो आखिरी में कहा कि जो पिक्चर आपने दिखाई राजा जी की, और उसमें किसी को ज्वाइन होना है तो हो सकते हैं, तो वो आप कुछ उस पर अलग अभ्यास कर रहे हैं क्या? नहीं, वो जो ये जो किताब है इसमें पूरा उसका कविता है और रागों का नाम दी गई है. तो इसको स्कूल्स में जाकर के एक प्रयोग के इससे देखना है कि क्या ये सिखा सकती, क्योंकि ये ज्योग्राफी है. एक एक जो देश है उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसमें जो नदियां हैं, उसमें जो पहाड़ हैं, वैसे जानकारियां हैं. पर इसको एक राग का नाम दे करके, एक छंद दे करके उसको कविता के रूप में बनाए हैं ताकि इसको गा सकते हैं. तो उस काम में कोई जोड़ना चाहते हैं शिक्षण के क्षेत्र से, एजुकेशन के क्षेत्र से, तो हमें तो मतलब आनंद ही होगा. और एज एन एक्सपेरिमेंट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. ये पुस्तक मिलने का कहीं कुछ तंजावुर में जाना पड़ेगा. तंजावुर में जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी लाइब्रेरी के पब्लिकेशन है, वहीं पे मिलता है. वहीं पे मिलेगी क्या? ऑनलाइन आ सकती है क्या? देख सकते हैं, अगर वो लाइब्रेरी अभी ऑनलाइन सेल शुरू किए हो तो मैं देख सकती हूँ और इनको बता सकती हूँ. बिल्कुल सही है.
हाँ क्योंकि मैं भी संगीत से प्रेम रखता हूँ, अभी से नहीं, राइट फ्रॉम 66। अच्छा और इसमें जो है ना थोड़ा बहुत गाता बजाता भी रहता हूँ, तो इसके लिए ये चीज बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा ये पुस्तक यदि मिले तो शायद कुछ फायदा हाँ, इसका बच्चों हो। के लिए तो ये करना ही पड़ेगा। हाँ। यू नो इट इज समथिंग दैट इज वेरी रेलेवेंट एंड वेरी करंट। अभी ये प्राचीन इसका जो इन्फॉर्मेशन है ये करंट है और ये सही भी है, इसमें कोई Thank you. गलती नहीं है। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं यहाँ पर एक कॉलेज में म्यूज़िक की प्रोफेसर हूँ। तो हम बडिंग रिसर्च ये टॉपिक के अंडर कर सकते हैं क्या, ये मैं आपको पूछना चाहती थी। अगर हमारे स्टूडेंट्स भी आ जाए हैं तो आपका ये नहीं, लेक्चर इसका देखकर एक म्यूजिकल एक फॉर्म मिल गया तो हाँ। आपके स्टूडेंट्स क्या ये सीख करके सिखा सकते हैं? अच्छा, ये सवाल ओके, तो ये काइंड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है बिटवीन म्यूजिक एंड एजुकेशन देयर इज जी। नथिंग लाइक दैट। थैंक यू। थैंक यू।